Good morning, students. I have already discussed introduction of the chapter Portrait of a Lady by Khushwant Singh. You all will learn the name of writer also because it is very important. There will be some objective question and sometime the name of writer have been asked. Sometime the line has been given and the name of the chapter can be asked. That's why you all will learn the complete name of the title and the name of writer. First thing. Second thing, when we are reading the chapter A Portrait of a Lady by Khushwant Singh, we should know about what is the theme of this chapter. Here we have find that Khushwant Singh has discussed about his grandmother. It means that the complete autobiography means complete story that is given in your syllabus. It is an autobiography of the writer, and here the writer has discussed the relationship with his grandmother. In this story introduction, I think you all know about this chapter. I have sent you already. When you are writing the notes of the chapter, first of all, you will put the heading, writer name. You will write about the writer, introduction, theme, title, word meaning, and message. I will send you complete notes of the chapter. After that, you will write objective questions, one-liner, short questions, very short questions, and long questions. When we are writing, we want to know the complete story of the chapter, we can make some parts of the chapter. Here, first of all, we have find the life in the village. Here, the writer is living with his grandmother in village area. That's why we have find the life in village. In village, they are very happy. Here, the writer and his grandmother is very happy when they are living in village area. आप सभी ने देखा होगा गांव में, सबने गांव तो देखा है ना, सभी लोग गांव कभी न कभी गए होंगे. They are living in village and they are very happy in the village. Whenever the writer is going to school, very little. That time is very young. Grandmother is also going, and when he is studying alphabets in school, grandmother also reading scriptures, religious books. She is also using a rosary. Here we have find that they are very happy. अब गांव में क्या है कि वो जब भी जाती, she has taken some slate chapatis and she is offering these chapatis to stray dog. आपने देखा होगा बहुत से ऐसे डॉग्स होते हैं जो जिनका कोई मालिक नहीं होता, they are stray dogs. वो क्या करती, जब भी जाती तो कुछ चपाती, जब भी स्कूल से वापस आते बच्चा अपने ग्रैंडसन को लेके वो चपाती डॉग्स को दे. It wasn't that she is kind-hearted lady, she is a good-hearted lady, she is a religious lady. तो हम कई बार क्वेश्चन इस पे बनता है कि you will give some reason that the grandmother is a religious lady and grandmother is a kind-hearted lady. तो हमने यहाँ पाया कि वो बहुत दयालु है. जब भी वो जाती तो एक स्लेट चपातीस बना के ले जाती और वहां वो चपातीस वो किसे देती, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स. दूसरी चीज, जब भी वो राइटर्स को नहलाती, तैयार करती या उसे पढ़ाती, तो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फोकस था ग्रैंडमदर का कि ही शुड लर्न अबाउट कल्चर, ही शुड लर्न अबाउट रिलीजन. होता है ना हम लोग के यहाँ भी क्या होता है, जो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर होते हैं, आप देखिए क्या करते हैं, वो आपको कभी श्लोक सुना रहे हैं, कभी भजन सुना रहे हैं, कभी जो कीर्तन सुनाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि हम जिस भी रिलीजन से हैं, वी ऑल आर इंडियन. सबसे पहला हमारा रिलीजन क्या है, हम सभी भारतीय हैं. तो सबसे पहला रिलीजन क्या होता है, हमारे ग्रैंडसन हमारे इंडिया के बारे में भी बताते हैं, हमारे देश के बारे में. तो सबसे पहले जो हमारी भक्ति होती है वो क्या होती है, देशभक्ति. फिर हम रिलीजन की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो भी हमारे ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो हमारे बच्चे जाने, हमारे ग्रैंडसन जाने और वो उसमें इंटरेस्टेड हो. But you know that when the son or grandson or granddaughter, they are very little, they cannot
learn the meaning, but they can learn sentences and words. यहाँ पे क्या होता है, राइटर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी दादी माँ बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा जो है वर्ड्स का जो टोन है, जो बोलने का स्वर है, वो बहुत अच्छा लगता है। भले ही वो राइटर उन चीजों को समझ ना पाता हो बहुत अच्छे से, लेकिन उसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट थिंग दैट शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज she loved too much, and with there is the bonding, there is affection, love, and a good relation between grandmother and grandchildren. That's why they are very happy. लेकिन तब थोड़े ही दिनों बाद, कुछ ही दिनों बाद हम पाते हैं कि there is a turning point. थोड़ा समय तो उनका बीतता है एक साथ, वो बहुत खुश है, एक समय तक वो रहते हैं विलेज में, but there is a turning point we have find. There are many questions has been asked in examination about this turning point. टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जैसे हम हमारा जो लाइफ हो क्या है, ये इसमें अप एंड डाउन्स है, और हम लोग को इसके लिए तैयार रहना है कि इसमें ये मैसेज भी है। क्या होता है कि कभी हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती है और बहुत खुश होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या हम दुखी हो जाते हैं, या डिप्रेशन, नहीं, ये लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो एक मैसेज भी हमें इस स्टोरी से मिलता है कि यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि अभी तो वो बहुत खुश थे, स्पेशली ग्रैंड मदर तो बहुत खुश है, बट देयर इज अ टर्निंग पॉइंट। व्हाट विल हैपन? देयर पेरेंट्स आर both settled in city and now they also have gone there. वो सेटल होते हैं, बच्चे को भी बुला लेते हैं। अब क्या होता है टर्निंग पॉइंट में? ग्रैंड मदर, ग्रैंडसन बोथ हैव गॉन इन सिटी। अब सिटी में क्या होता है? सिटी में क्या, पहले गांव में क्या था कि वो खुद ले जाती थी, स्कूल छोड़ती थी, बट नाउ व्हाट विल हैपन? हियर वी हैव फाइंड दैट he is going by स्कूल वैन, स्कूल बस। आपने देखा होगा कि अब सिटी में क्या होता है कि स्कूल बस चल रही है, वैन चल रही है, तो बच्चे उससे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई ग्रैंडमदर इज नॉट गोइंग विद हर ग्रैंडसन। पहला जो बैक हम देखते हैं, पहला जो स्पेस देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं कि अब ग्रैंडमदर नहीं जा रही। सेकेंड थिंग दैट द सब्जेक्ट्स, now subject has become changed and now writer is learning English, about gravity, about the principles of Archimedes, about science, about music, और ये सारी चीजें वो थी जो ग्रैंडमदर को नहीं आती थी। ग्रैंडमदर कैन नॉट हेल्प, कैन नॉट डिस्कस, कैन नॉट टीच। इससे भी एक डिस्टेंस बनता है क्योंकि ग्रैंडमदर को ये सारे सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे ग्रैंडमदर ग्रैंडसन थे, उनके टाइम में कंप्यूटर नहीं था, उनके टाइम में ये स्मार्टफोन नहीं था। जैसे आज हम क्या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आज बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती जाती हैं, बस वैसे ही हुआ। और ग्रैंडसन जो है वो सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने लगा जो ग्रैंडमदर को नहीं पता था, जिसमें ग्रैंडमदर उसकी हेल्प नहीं कर सकते। इससे भी एक स्पेस, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ। नाउ ग्रैंडमदर कैन नॉट डिस्कस, कैन नॉट टीच, कैन नॉट हेल्प। सेकेंड थिंग, एक म्यूजिक की बात करें तो देखिए म्यूजिक और डांस दोनों की हम बात करेंगे। आप उससे म्यूजिक की बात कीजिए, ये भी समय के साथ बदला। जैसे आप अपने ग्रैंडमदर ग्रैंडसन के ग्रैंडफादर के टाइम की बात करेंगे तो उस समय म्यूजिक और डांस में लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते थे, कुछ परसेंट लोग होते थे। लेकिन आज समय के साथ आप देखिए घर घर में चीज़ें आ चुकी है हमारे यहाँ, टीवी हो गए, मोबाइल हो गया, नेट की व्यवस्था हो गई, लैपटॉप हो गया, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ हो गई और आज हर बच्चा डांस म्यूजिक जानता है। लेकिन तब बहुत कम जगह फैसिलिटीज़ थी और शायद हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वैसे ही यहाँ खुशवंत सिंह की भी ग्रैंड मदर म्यूजिक को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती और कहती है दिस subject is only for beggars, not for civilized person. ये civilized के लिए नहीं है। There is no need to learn music, but this is the subject, and here the writer is learning. इससे भी एक जिस सब्जेक्ट में अब यहाँ राइटर को इंटरेस्ट हो रहा है, क्योंकि उनके लिए म्यूजिक सिंगिंग क्या था, रिलीजियस थिंग्स को सीखना, कल्चर को सीखना, बट यहाँ चीजें चेंज हो गई।
म्यूजिक है तो बहुत तरह के सॉन्ग सीखे जा रहे हैं. The life in city create the turning point in their life. Result of love. अब क्या होता है कि यहाँ अब वो बड़ा हो रहा है और वो यूनिवर्सिटी में गया. नाउ हैज टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाट विल हैपन, ही हैज गॉट अ सेपरेट रूम. क्योंकि अब उसे ज़्यादा पढ़ना है, उसका बर्डन बढ़ गया, सब्जेक्ट बढ़ गया, उसे एक सेपरेट रूम की आवश्यकता है. ही गॉट अ सेपरेट रूम. इट क्रिएट द डिस्टेंस. जो एक एक रिलेशन में एक चीज बची थी कि वो सब दोनों एक रूम में रहते थे. नाउ इट आल्सो, अब वो अलग अलग रूम में रहने लगे. It create the problem. What problem? We have find that grandmother has become sad, and after that he will go to study abroad. अब वो बाहर जा रहा पढ़ाई करने for 5 years, and when she has come to say off, what will happen? That writer think that this is the last time when he see his grandmother. When he will come back, grandmother will not be alive. लेकिन आया जब वो कम बैक हुआ, वी हैव फाइंड दैट द रिजल्ट ऑफ लव व्हाट विल हैपन. ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंडमदर उसी का इंतजार कर रही हो. ग्रैंडमदर इज अलाइव नाउ एंड शी वेलकम हिम and she call other women and they started to sing. They are using the drum and they started to sing the song which can be sung on the back of the warriors. And after that day we have find that she has become ill. Doctor has come and doctor has told that she will be well after some time, but it will not happen. And she has become ill and she is using his rosary, telling the name of God, remembering God, and she died. In city area there are not instead of, that's why she is offering breads, piece of bread to sparrows. All sparrows has come, and sparrows has come. The mother of Khushwant Singh, the writer, she offering some piece of bread, but that day no sparrows has taken a single piece of bread. Why? Because sparrows are also spared on the death of grandmother. Thank you.